Right? Yeah, but these are for your mom. I said for you as well. I said for each one of you. I'm gonna get it to you. And I promised him I'll get him Nobody said some during Robux their for his time. birthday. There we I go. didn't Amaya's gonna get it with all her money, okay? No! Okay, I have. Yeah, what you say? No? What? You said- Baby. Maya. Nobody said. One day, inshallah. Yeah, nobody this said is what? Hannah. So we can't show you Hannah face, but this is Hannah. Hannah, talk. Hannah, how are you? Come on, bite me, Hannah. Come on, bye. You know what? The thumbs down thing, right? I was just like, Thumbs up My thing. Hannah is thumbs up so thing, I was like- beautiful. My Hannah is so beautiful. It was an option, and then because it came, I did okay. Then this came I up, looked at it, I was like, and then I was like, should I delete the? It's just thumbs up. Sent it, and then I'm like, what the hell? So we talked for like 3 hours about Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and Khulafai Rashideen and everything. And who brought it up? You did. yeah. No, You did. You went off on a tangent and you did a story for about 45 minutes. Now my brain is So gone. cool. Celebrity, mama. You need permission and rights and copyrights and everything else, okay? Kanjara. You need to book an appointment with his assistant. Kanjara. A big kanjara. Yeah, Kanjara. Shall we make pulao rice? Whatever you want. Then come on. I ate so Come on, much. let's go. Even though I'm so full. Okay, you I can think eat. we should wait a bit. Okay then. We're going now. उसको ने आवाज क्यों आया गाना ना फिर Go on now. come on now, come on now, come on. You were singing now. Come on. To sing. Come on. Okay. Amaya, slow down the TV. Don't be shy. No, don't be shy. Come on, Nafia. Is that singer Ragale name? I don't know how to sing. Natro try. हाय अस्तगफिरुल्लाह अच्छा हमने हीरा मंडी ड्रामा देखा I है did it, but there's not enough information on it. ना अगर ता हीरा मंडी ड्रामा सकत ले दचे बस अनाफिया वॉच है हीरा मंडी ड्रामा Me, it's where we all watched it We together. literally and cried. Maria's going, yeah and then Mum's going like that. yeah And then what was the other thing? Oh, then we watched another movie. oh my The shaitan guy Hyptonite. shaitan was the worst one What is it? that were Nafia Zanafia hey Amaya slow down kana gaane wayu kana mani okay Oh, Amaya I which did. one is your favorite song come What's on my favourite song? زبدم رمينا ما بركة أعرف أنا كم استاقوا خوازيابا كم درزيزا No. Oh, it's No. مليها Malia ho bakhtawer khatak sarvede de. بختار خطكنا بختيار خطك Bas bakh de kana. أو همايون Hamayun. they invite us for lunch Yeah. and then Maliha sings song for them Which song did you sing, Malia? she sang Larsha pe khabarta isn't it Maliha but they were laughing because it was like English version Pashto song. She said, "Lo shopa haverta kamistor She's malera." not that bad. She was that bad that days. She's good now. Okay, now he. Malia sing ke kana zumunzo kama. ओए कंजरे ओके ये मैं इनको कह रही हूँ कि आज ब्लॉग बनाएंगे और 3 दिन हो गए ये आई है के नून जे रे ये A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. ये बस मलीहा भी रेडी है घर जाने के लिए और हुअर लगा रही है आखिर काम मेरे साथ कर लेते हैं वीकेंड तक और ये साहिब भी रेडी है Caleb, what are you doing? We going out for breakfast? Yep. चल come on let's go we going for breakfast come on get up
सो बच्चे मेरे साथ हेल्प कर लेते हैं सारा कुछ, फिर ये बेचारे चले जाते हैं। आज बैंक हॉलीडे है, तो टुडे इज़ मंडे है, ये आज मंडे है पर इनका बैंक हॉलीडे था तो छुट्टी है। साफुना का सुमैया कमरा के लिए कह रही है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगी और फिर आप हम चले जाएंगे, क्योंकि कल फिर आज बैंक हॉलीडे है, मंडे है, तो कल इंशाल्लाह कैलब का स्कूल है। तो सब बच्चे इधर थे, सिद्दीक कल चला गया, मलिहा सॉरी नाफिया अभी सुबह ज़रा 11 o'clock चली गई, क्योंकि मैंने आपको बताया उसने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसमें काम शुरू हो रहा है। तो खैर है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लिविंग के लिए नहीं है, लेकिन इकबाल कह रहा था फिर मुझे बक बक करोगी तो आ जाओ देख लो कि तुमने क्या उसमें करना है। या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसको बना के रेंट आउट कर लेंगे या फिर बेच देंगे कुछ, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी प्रॉपर्टी के बिज़नेस में चले गए हैं। तो ये देखिए ये हैंडमेड मुझे गिफ्ट हुआ है। अभी मेरे पास कील नहीं है कि मैं इसको इधर लटका दूँ, तो इसको मैं लटकाऊँगी। तो चलिए हम रेडी हैं, हम जा रहे हैं नाश्ता करने, नाश्ते की टेबल पे मिलते हैं। यहाँ सारी हमारी गाड़ियाँ पार्क की हुई होती हैं और फिर संडे को या बैंक हॉलीडे को खाली हो जाती है। आज मैं ग्रास कटने वाली हूँ, दुआ करे खैर खैरियत से काट लूँ। मैं मलिहा के साथ जा रही हूँ। ओए मलिहा, थैंक यू मम्मा। मेरे बचूड़े ने दुआ पढ़ ली, दे दिया होता। तो अच्छा एक और बात भी आप लोगों को बता दूं, जब ये फ़लस्तीन का सब कुछ शुरू हुआ था तो हमने अभी तक स्ट्रिक्टली बस मुझे ये पता था कि मैकडोनल्ड और वो जो स्टारबक है ना, बस यही इन दोनों का पता था, बाकी तो 500 ब्रांड है उनके, तो मुझे इतना पता नहीं है कि कौन से, पर इन दोनों का, वो कोक का और इन तीनों का बाइकआउट कर लिया था। अब अगर कभी कोई छोटा सा पैकेट क्रिप्स का मेरे हाथ में हो तो कमेंट आ जाते हैं, हाँ तुम लोग मुनाफिक हो, खुद कहते हो बाइकआउट है, ये बाइकआउट नहीं किया। तो उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि हम 500 ब्रांड है, 500 से भी ज़्यादा इन लोगों की 500 ब्रांड है। अगर 500 ब्रांड में अगर 1 2 3 4 इंसान ले और खा ले, जैसे हमारे कपड़े धोने के वॉशिंग पाउडर से लेके बाकी चीज़ों तक सब इनका है। अब हम लाइफ में इतनी ज़्यादा इन चीज़ों के हम एडिक्शन हुई है कि अब हम आहिस्ता हमें पहचान होगी और हम काटेंगे। लेकिन ये 3 जो है ये बड़े हैं, तो तीनों को हमने काटे। इज़ इन मलिया। सो प्लीज़ अटैक, पता है मुसलमानों का एक काम वेरी वेरी ख़राब है कि हम एक दूसरे पे अटैक करना नहीं छोड़ते। अगर हम यूनाइटेड हो जाए, हम एक साथ हो जाए, हम एक दूसरे पे अटैक करना छोड़ दें तो हम बहुत अच्छी कौम है। ये गोरे क्यों कामयाब है? ये इसीलिए कामयाब है कि ये एक दूसरे पे अटैक नहीं करते, ये दूसरों पे अटैक करते हैं। पर हमारे चाहे वो हम हिंदू हों, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, हमारे लोगों का ये काम है कि हम ये जो जितने भी साउथ एशियन लोग हैं, हमारे इतना ये काम है, स्पेशली बांग्लादेश के, इंडिया के और पाकिस्तान के, कि हम तीनों कौमें एक दूसरे पे अटैक करते हैं। फलाने ने ये किया, ढिमकाने ने ये किया। जो जितना करता है उसको अप्रिशिएट करो और उसके ऊपर अटैक करना छोड़ दो। तो ये भी एक बात थी। एनीवे अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए और साथ में नाश्ता करने के लिए। मैं तो खैर हमेशा घर में इनको नाश्ता खिलाती हूँ, लेकिन मलिहा भी रश कर रही थी, जा रही थी, नाफिया भी चली गई, तो मैंने कहा चलो आज बाहर करते हैं। तो आ जाइए हमारे साथ। दिखाया है लेकिन आज एक दफ़ा कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, इसको कोको टाउन कहते हैं, और यहाँ 3-4 कॉफ़ी की शॉप्स हैं, तो बढ़ जाएंगे। ये सारा बीच है, बहुत ही प्यारा हॉलीडे वाला एरिया है। आप लोगों को कभी मौका मिले तो पोर्तगल ज़रूर आए, क्योंकि पोर्तगल बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का हॉलीडे वाला जगह है। छोटी सी शॉप्स है इसमें, बैंक हॉलीडे तो ज़्यादा चीज़ें बंद हैं। तो बहुत ही मासूम सा छोटा सा टाउन, पोर्तगल का छोटा सा मिनका सा टाउन, क्योंकि यहाँ पे सारे ज़्यादा जो होते हैं
एल्डरी एज के लोग होते हैं और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छे अखलाक वाले ये वेल्श लोग हैं ज़्यादा। आई अल्लाह कितनी प्यारी है बिल्ली। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने कोबी को ढूंढती हूँ। मेरा कोबी गुम हो गया है, तो जहाँ भी जाती हूँ तो जो बिल्ली नज़र आ जाए उसको पाकि हुए दे पाकि हुए दे। पता है किसके साथ ज़्यादा एंजॉय करता है? अपने बच्चों के साथ। सो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करो, उनके साथ छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करो। Isn't it? Family should enjoy with family, yes. Yeah. And Where is your camera? Where is your camera? कैमरा पकड़ती है ना तो do ऐसे you know पकड़ती what? है It's कि- really bright today. I और फिर needed मुझे sunglasses कहेगी, today. तुमने मेरा गलत एंगल से लिया। No, I used to say to you, "Galat angle." I really don't give now. But no, yeah, it's nice. You should spend your time with family because you don't know how much time you have with your parents, especially. वाह And Annabelle, again. I hate And when you don't have enough time with your parents, then you're going to regret it when they're gone. So that's just why it's like, okay, if my parents, I'm really lucky to have my mother, and if she is gone, then I'll be regretting it. But this is fact, this is truth of life कि पेरेंट्स जाएंगे बहुत बदकिस्मत पेरेंट्स होते हैं जो औलाद के बाद चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करें। ये आपको बता रही हूँ, ये मेरा छोटा सा टाउन है, मेरा नहीं है कौंसल का टाउन है, लेकिन ये छोटा सा टाउन है। देखिए इनमें इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो कि आपको हाई स्ट्रीट से नहीं मिलेगी। यहाँ पे वैसे चैरिटी के शॉप भी बहुत ज़्यादा हैं और ये मुख्तलिफ़ चैरिटीज़ ने अपने लिए शॉप खोले। हम ज़रा कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं और फिर कॉफ़ी के बाद आपसे गपशप लगाते हैं। सो अभी मैं और हमने चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली और अब हम जा रहे हैं। Dinosaur. अब हम जा रहे हैं किधर? Getting some Welsh cakes. वेल वेल्श केक हमारे फेवरेट होते हैं, लेकिन कभी कभी वेल्श केक में ये कुछ डालते हैं, पता नहीं उसे राम कहते हैं क्या, पर ये वाले वेल्श केक हमने पूछा है तो इसमें कुछ नहीं होता, ये प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, तो इस हमारी फेवरेट है। तो आ गई हूँ, घर आ गई। फिर नाफी की तरफ जाने का इरादा था, जैसे कि आप लोगों को बताया कि आज मैं नाफी की तरफ नाफी चली गई। आज बैंक हॉलीडे है, आज ही ये ब्लॉग पोस्ट करूँगी। तो नाफिया ने कहा कि बस अब तुम आ जाओ मेरे घर, लेकिन कल मेरा फिज़ियोथेरेपी का अपॉइंटमेंट है, फिर उसके बाद मेरा फुल ब्लड काउंट है, उसका अपॉइंटमेंट है। और इन सब बातों की वजह के लिए तो मैं पाकिस्तान भी नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे हेल्थ के काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हैं। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, जो दुश्मन होते हैं खैर अल्लाह ना करे कि कोई मेरा दुश्मन हो, अल्लाह मेरे दुश्मनों को भी मेरे दोस्तों में तब्दील कर दे। तो जब कोई दुश्मन होता है, जब तुम लोग कहते हो मेरा अपॉइंटमेंट है, ये है, वो है, ये है, मैंने अभी रिसेंटली ये किसी से बात सुनी है कि कोई कहता है कि हाँ इसीलिए हर वक्त इसके अपॉइंटमेंट होते हैं, बीमार रहती है कि ये हमारी बद्दुआएं होती हैं इसके साथ। अच्छा, ये और जब वही लोग जो ये बात करते हैं, तो जब वो किसी आजमाइश में होते हैं, उनके साथ बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी गरफोदगी हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो कहते हैं हम बड़े ये अल्लाह के इम्तिहान में हैं हम, क्योंकि अल्लाह नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। तो भाई क्या हम अल्लाह के नेक बंदे नहीं हो सकते? मुझे आज बड़ी हंसी आई, किसी ने ये बात मुझे कही कि हाँ वो क्या कहूँ ना, बस आप समझ जाए ना कि किन की बात कर रही हूँ। कि वो कह रहे थे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा कि वो लोग कह रहे थे कि ये हमारी बद्दुआएं हैं इसके साथ हर वक्त, इसीलिए इसके टेस्ट होते हैं और ये होता है और ये बीमार होती है और ये होता है। मैंने कहा बीमार तो मैं बचपन से ही हूँ बीमार तो मैं बचपन से ही हूँ। लेकिन मैंने कहती है, फिर मैंने आगे से उनको जवाब दिया कि माशाल्लाह वो तो बड़ी खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने औलाद भी इतनी अच्छी दी है और खावन भी इतना अच्छा है और ये है और वो है, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। तो कहती है तुम लोग अपनी फ़िक्र करो, जो तुम लोग कह रहे हो हमारी बद्दुआओं से वो ऐसी है, तो तुम लोग अपनी फ़िक्र करो। तो पता नहीं मेरी फ्रेंड ने वाकई उसे ये जवाब दिया है नहीं दिया, लेकिन मुझे खुश करने के लिए तो उसने ये कह दिया। तो मैं हंस पड़ी, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो मेरी फ्रेंड चले गए थे तो मैंने नाफिया को कहा, मैंने कहा नाफिया
जानू मैंने कहा पता नहीं ये क्या बात है, मैंने कहा ये लोग जब भी मैं बीमार होती हूँ या मेरा एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो कहते हैं हमारी बद्दुआ इसको लग गई है, लेकिन जब खुद इनके घरों में फोदगी हो जाती है तो फिर ये लोग कहते हैं कि ये हम अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं तो हम पे ये आजमाइश आई है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये तेरा इंसान क्या कर रहा है। मैं कल हम शैतान मूवी देख रहे थे, तो वो शैतान मूवी मैं और नाफिया और मलिहा देख रहे हैं, तो उसमें खैर ब्लैक मैजिक के बारे में है। तो मैं नाफिया और मलिहा को कह रही थी कि मलिहा कहती ये ऐसे, मलिहा कह रही थी ऐसे कैसे हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक से इसने इसको कंट्रोल कर दिया, इसके दिमाग को, वो बच्ची होती है। तो मैंने कहा मलिहा ऐसे ही मेरे साथ होता था, मुझे ऐसे लगता था मेरे दिमाग को किसी ने दोनों तरफ से ऐसे पकड़ा हुआ है और मेरा दिमाग, मैंने कहा डिप्रेशन का नाम तो दिया हुआ था कि मुझे डिप्रेशन है, लेकिन मुझे यही लगता था कि मेरे दिमाग को मैं नहीं चला रही हूँ, कोई चला रहा है। मैंने कहा मुझे फील होता था कि ये काम मैं ना करूँ, मैं उदास ना हूँ, लेकिन मुझे दिमाग में से आवाज़ आती थी कि उदास हो जाओ। तो ये बात कर रहे थे। फिर उसमें वो जो बैड इंसान होता है, वो शैतान, वो कहता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे बना दिया, ये ऐसे करते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, मैंने कहा अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मेरा ये इंसान मेरा हुक्म मानेगा, लेकिन हम कहाँ मानते हैं। आप यकीन करें मैं खान को हमेशा कहती हूँ, हमेशा, यानी कि मेरा अल्लाह मेरा गवाह है कि मैंने खान को हमेशा ये कहा है कि अपनी फैमिली के साथ जोड़ के रखो, अपनी फैमिली के साथ जोड़ के रखो, इनको दे दो जो कुछ देना है, इनको ये करो। लेकिन आप यकीन करें फिर मुझे पता चलता है कि वो बात करेंगे तो मेरे ही खिलाफ करेंगे। फिर इतना मुझे दुख हो जाता है कि मैं 24 घंटे तुम लोगों के बेटे को तुम लोगों के लिए राज़ी करती हूँ और फिर तुम लोग मेरे ऊपर ही बातें शुरू कर दे, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन मैं पता है क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरा अल्लाह है, मुझे इसका अजर अल्लाह देगा, और अल्लाह दे रहा है मुझे। किस सूरत में? मेरे बच्चों की सूरत में। तो ये बात इससे शुरू हो गई कि नाफिया कह रही थी कि मेरी तरफ आना, लेकिन मैं फिर लग गई टिकटॉक की कुछ वीडियो बनाने थे, क्योंकि जो ब्रांड्स मुझे चीज़ें बेच देते हैं मैं उनको यूज़ कर देती हूँ। मैं फ़ेक रिव्यू भी नहीं देती हूँ, मैं पहले उनको यूज़ करती हूँ, फिर मैं यूज़ करके फिर वो मुझे बार बार कहेंगे कि पोस्ट कर दो वीडियो। मैं कहती हूँ नहीं सब्र करो, मैं यूज़ कर लूँ। फिर मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ, फिर मैं यूज़ करती हूँ, फिर जब मुझे पसंद आते फिर मैं रिव्यू पोस्ट करती हूँ। तो वो ऐसे 3 प्रोडक्ट थे जो कि मैंने अनबॉक्स कर लिए थे, वीडियो बना दिया था, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किए थे। तो उनको प्रॉपर आज मैंने यूज़ किया, मैं खुश हुई, मोगेम्बो खुश हुआ। तो मोगेम्बो जब खुश हुआ फिर मैंने उसको आज मैंने कहा चलो पोस्ट कर दूँगी। अभी ये एक ब्रांड ने बहुत प्यारा मुझे ये ऐसा कफ्तान सा भेजा है, बहुत ही खूबसूरत है। यकीन करें कि इतना खूबसूरत है, मेरा दिल चाह रहा है कि इसको पहन के मैं कहीं आज चली जाऊँ। अगर आज बच्चे ना गए होते ना तो इसको पहन के तो मैं उनको कहती, क्योंकि धूप भी निकली हुई है, थोड़ी बहुत धूप निकली हुई है, तो मैं कहती कि चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि मैं जब नए कपड़े पहनूँ तो फिर मुझे बाहर जाना होता है, बस फिर मैंने घर में नहीं बैठना होता है। इसीलिए मैं नाइट ड्रेस से निकलती ही नहीं हूँ। मैं नाइट ड्रेस इसीलिए पहनती हूँ कि मैं बाहर ना जाऊँ। तो चले बस इस ब्लॉग को तो आज ही मैं पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। आज मंडे है, बैंक हॉलीडे है, तो आप लोगों को एक कहानी भी सुनाऊँ बैंक हॉलीडे की तरफ से। तो जब मैं आई थी इस मुल्क में तो मेरी जो नेक्स्ट डोर, इस तरफ भी मेरी बांग्लादेशी नेबर रहते थे और इस तरफ भी बांग्लादेशी नेबर रहते थे। मैं बेडफोर्ड स्ट्रीट में रहती थी, तो मेरे अगर वो बांग्लादेशी मेरे नेबर ये व्लॉग देखे तो उनको शायद याद भी आ जाए कि ये किस बारे में बात कर रही हूँ। तो वो दोनों मेरी ऐसी थी कि बहुत काफ़ी बड़ी थी मुझसे, लेकिन मेरी वो उनके बड़े बड़े बच्चे थे और मेरी नाफिया गोद में थी, 6 महीने की गोद में थी। तो फिर तभी से उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। फिर मेरे 3 बच्चे भी हो गए थे और मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई थी। वही 2 मेरे नेबर थे। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही बैंक हॉलीडे था तो वो एक मेरी नेबर जो मेरी लेफ़्ट साइड पे रहती थी वो आ गई, तो मुझे कहती है कि भाभी आज तो बंगाली डे है। तो मैंने कहा अच्छा। कहती ये देखो ये यूके वाले बंगाली डे बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा बंगाली डे बनाते हैं। मैंने कहा कैसे? कहती ये देखो हम बांग्लादेशी लोगों को नहीं पता कि आज बंगाली डे है, तो ये देखो ये जो यूके वाले लोग हैं ये देखो साल में कितनी दफ़ा बंगाली डे बनाते हैं। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? कहती ये देखो आज भी बंगाली डे है।
मैंने कहा है तेरी के, मैंने कहा बंगाली डे नहीं है, ये बैंक हॉलीडे है भाभी। तो वो बात, मैं जब भी बैंक हॉलीडे होता है मुझे भाभी की बात याद आ जाती है कि ये बंगाली डे है, तो ये बंगाली डे, मैंने कहा नहीं है, ये बैंक हॉलीडे है। तो बस छोटी छोटी सी बातें थी, ये मैंने फिर मलीहा के साथ आज ये बात मैंने उसे बताई। मैंने कहा वो फलानी आंटी को जानती हूँ, कहती हाँ। मैंने कहा ये बैंक हॉलीडे जब भी आता है मुझे उसकी वो बात याद आ जाती है। तो बस अब घर आई, इरादा था ग्रास काटने का, कि मैं ग्रास काटूंगी, बड़ी ज़ोर शोर से ग्रास काटने का इरादा था। देखती हूँ तो बेल हुई, मलीहा ने मुझे ड्रॉप किया, मैं घर आई। घर आके तो मैंने बस 2-3 टिकटॉक के वीडियो बनाए तो बेल हुई। मैंने कहा ये कौन आ गया। एनीवे जब मैंने वो कैमरा चेक किया कि कौन है डोर पे, क्योंकि हमारा वो डोर बेल कैमरे के साथ अटैच है, तो वो मैंने देखा तो एक बड़ा दड़ंगा आदमी खड़ा है। मैं जल्दी डोर के पास गई, मैंने कहा पता नहीं ये कौन है। मैं कहा जी, आप इंग्लिश में, मैंने कहा कौन हो। कहते हैं मैं फलाना फलाना माइक हूँ, तो मुझे मलीहा ने भेजा है, तो वो तुम्हारे गार्डन के लिए, कि तुम्हारी गार्डन की ग्रास में काट लो। तो कहते हैं ये तो मासिव गार्डन है। तो मलीहा ने तो मुझे कहा कि ये तुम्हारा गार्डनर 70 पाउंड का काटता था, पर मैं तो 70 पाउंड में ये नहीं काटूंगा, ये तो मैंने चेक किया, ये तो बहुत बड़ा है, तो मैं 140 पाउंड लूँगा, और फिर जब हर 2 वीक के बाद आऊँगा तो 70 पाउंड लूँगा। मैंने मलीहा को फ़ोन किया, मैंने कहा तुमने किसी माइक को भेजा। कहते हाँ। कहती है मैं जब तुम्हें उतार दिया, तुम्हारी ही कार पार्क में खड़े खड़े मैंने सर्च किया, ये पोतकाल का आदमी है, ये तैयार है, ये आ जाएगा, काट देगा। तो बस ये सब बातें आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि कोई बच्चा ये मेरे व्लॉग देखे जो कि अपने माँ बाप के साथ नहीं करता, तो उसके साथ किया करे। और अगर कोई बहू भी है वो भी देख रही है तो उसके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि अपने खामदों को मना ना करो, करने दो उनको। अगर तुम्हारे हस्बैंड के दिल में तुम्हारी इज्जत हुई, तुम्हारी कदर हुई, तो वो अपनी फैमिली के साथ मिल के भी तुम्हारी इज्जत और कदर करेगा। और अगर तुम्हारे हस्बैंड के दिल में तुम्हारी कदर ना हुई तो बेशक तुम उसको जोड़ के अपने साथ रख लो, बांध के रखो ना, वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मैं अपनी बेटियों को भी यही कहती हूँ, अपने खामदों को आज़ाद छोड़ दो, उनको करने दो, वो जो करते हैं उनको करने दो, बस उनको मना ना करो। अगर वो तुम्हारे, मेरे अब्बू एक बात कहते थे कि अपने दोस्तों को, मेरे अब्बू दोस्त के बारे में कहते थे, मैं वही बात अपने खामदों के बारे में कहती हूँ। मेरे अब्बू कहते थे कि अपने दोस्तों को आज़ाद छोड़ दिया करो, उनको बांध के ना रखो। अगर वो तुम्हारे हैं तो तुम्हारे पास उड़ के वापस आ जाएंगे, और अगर वो उड़ के कभी तुम्हारे पास आए नहीं तो इसका मतलब है वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। यही बात मैं आप लोगों को कहती हूँ। मैं इन व्लॉगों में ये बातें इसीलिए पोस्ट करती हूँ। मैं अपने व्लॉग ऐसे ही बस बग़ैर मकसद के नहीं पोस्ट करना चाहती हूँ। मैं इसमें हमेशा एक आप लोगों को नसीहत करती हूँ अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से, कि आप अगर शादीशुदा है और आपका खावंद है और आप कहते हो कि उसको जोड़ के अपने साथ रखूँ तो ये फलाना उसको ख़राब कर देगा, डिमकाना, नहीं। अगर वो अच्छा होगा और तुम्हारा होगा, वो उड़ उड़ के तुम्हारे पास आएगा। लेकिन वो अगर तुम्हारा नहीं है ना, तो बेशक तुम उसको जोड़ के बांध के अपने बेड के साथ रखो ना, उसने तुम्हारा नहीं होना। ये मेरी बात याद रखना, उसने तुम्हारा कभी भी नहीं होना। तो चले अब ऐसे करते हैं कि इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं। मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, क्योंकि मैं जब भी टिकटॉक के लिए वीडियो बनाती हूँ मैं थक जाती हूँ। तो पुश्तो का व्लॉग पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। और पुश्तो का व्लॉग हर फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ आएगा, तो फर्स्ट ऑफ द मंथ से लेके 3-4 तक आप लोगों के पास पुश्तो का एक व्लॉग आएगा। और मेरी उर्दू और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक बात मैं बता दूं कि पुश्तो का एक व्लॉग आप लोग बर्दाश्त करें, क्योंकि मेरे जो पुश्तून फॉलोअर्स है, मेरी पुश्तून फैमिली है, वो उनको भी उर्दू और इंग्लिश नहीं आती, फिर भी मेरे व्लॉग देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग खफा ना हो, प्लीज़। और आप भी मेरे पुश्तों के व्लॉग देख लिया करें, चाहे आपको समझ आए या ना आए, मामा के व्लॉग देख लिया करें। और मैंने अब ये एक अपने साथ प्रॉमिस किया है कि अब मैं भी कहूँगी कि मुझे फॉलो करे, लाइक करे और कमेंट करे, क्योंकि मैं कभी कहती नहीं हूँ, पर मेरा यूट्यूब स्टक है इसी नंबर पे, देख ले, इसी नंबर पे स्टक है, 2 साल से इस नंबर पे स्टक है। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे व्लॉग को पसंद करें, मेरे व्लॉग को लाइक करें और मेरे व्लॉग पे कमेंट छोड़ें, क्योंकि इनडायरेक्टली ये आपका सदका होता है
मेरी यूट्यूब से एक एक पेनी ये चैरिटी में जाती है। तो चले, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।